Let's start with our first question. The question says, Spia multiplicata is one of several species of American spadefoot toad. Young spadefoot toads are called tadpoles and live in water in ponds. S. multiplicata tadpoles show three different phenotypes due to genetic variation. So they've told us that there are three different phenotypes of these tadpoles. The three phenotypes are detritus feeder, intermediate, and carnivore. Detritus feeders are small and carnivores are large. Intermediates vary in size between the two extremes. So इस डेटा से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास क्या कहते हैं टेडपोल्स के तीन फिनोटाइप्स हैं उनमें से ये एक एक्सट्रीम फिनोटाइप है द डेट्रिटिस फीटर एंड वी हैव दिस एक्सट्रीम फिनोटाइप तो स्मॉल होना और लार्ज होना ये क्या है ये हमारे पास क्या कहते हैं एक्सट्रीम्स हैं and intermediates vary in size between the two extremes. A detritus feeder and a carnivore are shown in figure 7.1. So they've shown us the large tadpole and they've shown us a small tadpole और साथ में उन्होंने हमें एक shrimp भी दिखाया हुआ है. Now they've given us information about all these three phenotypes, which I would be reading one by one. The detritus feeders eat detritus. They've told us what this is. These are basically small pieces of dead organic matter and algae. अच्छा तो वो detritus खाते हैं which is your dead organic matter और वो algae खाते हैं. Algae are basically your photosynthetic protoplasts. और साथ ही साथ they have smooth mouth parts, small jaw muscles and long intestines. ठीक है उसके बाद क्या कहते हैं they've told us about the intermediates. The intermediates can eat all available food. They can eat detritus, they can eat algae, they can eat fairy shrimps. And the intermediates have teeth-like mouth parts. तो जैसे हमारे teeth होते हैं उस तरह से heart इनके क्या कहते हैं mouth parts होते हैं. They have medium-sized jaw muscles and medium-sized intestines. फिर हमारे पास क्या कहते हैं carnivores आ जाते हैं जो कि they can eat fairy shrimps and other small animals. They have teeth-like mouth parts, large jaw muscles, and short intestines. Scientists counted the number of each type of tadpole in two different ponds, pond 1 and pond 2. अच्छा जी यहाँ तक जो सिनेरियो है जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है अबाउट द एक्सट्रीम्स अबाउट द इंटरमीडिएट्स क्लियर है कोई क्वेश्चन एनीथिंग दैट यू गाइस फाइंड डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड कैन आई प्रोसीड फॉरवर्ड नाउ साइंटिस्ट ने दो पॉन्ड्स में टेडपोल्स को एनालाइज किया उनकी पॉपुलेशन को एनालाइज किया नंबर्स देखा In pond 1, the scientists observed a high density of tadpoles. Tadpoles बहुत ज्यादा थे. But there was a low abundance of food. तो tadpoles ज्यादा है, abundance of food कम है, कम food available है. And the scientists also noticed that the most tadpoles they counted were either detritus feeders or carnivores, with very few intermediates present. Describe and suggest explanations for the type of natural selection that appears to be acting in pond 1. So I've highlighted the statement that would help you guys figure out which type of natural selection is occurring in pond 1. Can you guys suggest? हमारे एक्सट्रीम फिनोटाइप्स इंक्रीज हो रहे हैं हमारे एक्सट्रीम फिनोटाइप ज्यादा है और हमारी इंटरमीडिएट पॉपुलेशन कम है तो ऐसे नेचुरल सिलेक्शन को हम क्या बुलाते हैं एग्जैक्टली वी कॉल इट डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन तो एक मार्क हमने आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कहते हैं हमें मिल जाएगा विच इज व्हाट कि यहाँ पे हमारी क्या हो रही है हमारे पास यहाँ पर हो रही है disruptive selection so there is disruptive selection in pond 1 इसकी एक्सप्लेनेशन भी हमें देनी होगी बिकॉज वी हैव टू डिस्क्राइब तो हम खाली ऐसा क्या कहते हैं नाम लिख के तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे सो डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन बिकॉज the extremes are favored and the intermediates are less now हमारे पास क्या कहते हैं हमें नेचुरल सिलेक्शन की क्या कहते हैं रीजंस दे नाउ अगर हम यहाँ पे देखें नेचुरल सिलेक्शन कब होती है नेचुरल सिलेक्शन हमारे पास तब होती है जब हमारे ज्यादा नेचुरल सिलेक्शन तब होती है जब ज्यादा कंपटीशन होता है क्या इस डेटा से हमें पता लग रहा है कि किसी चीज का कंपटीशन है फूड का कंपटीशन है और अगर हम यहाँ पे देखें
तो हमारे पास क्या कहते हैं, आप देख सकते हो कि हमारे पास जो फेरी श्रिम्प्स है ना, वो हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। हमारे पास इंटरमीडिएट्स भी फेरी श्रिम्प्स खाते हैं, हमारे पास कार्निवोर्स भी फेरी श्रिम्प्स खाते हैं। अगर पॉइंट वन में फूड लिमिटेड है तो इसको हम ये कह सकते हैं कि फेरी श्रिम्प्स की जो अमाउंट है वो शायद पॉइंट वन में लिमिटेड हो। नाउ बिटवीन द इंटरमीडिएट्स एंड द कार्निवोर्स, ऑब्वियसली जो कार्निवोर्स हैं वो बड़े साइज के हैं। और अगर हमारे पास क्या कहते हैं कार्निवोर्स बड़े साइज के हैं, तो ऑब्वियसली अगर कंपटीशन होगा इंटरमीडिएट्स का और कार्निवोर्स का, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि कार्निवोर्स जीत जाए वो कंपटीशन, जिसकी वजह से हमारे पास जो कार्निवोर्स हैं, जो कि एक्सट्रीम फिनोटाइप है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उनका जो नंबर है वो बढ़ जाएगा, इंटरमीडिएट्स का कम हो जाएगा। सो हम कंपटीशन आइडेंटिफाई कर लेंगे एंड यू वुड से देयर इज competition for food as it is in low abundance. You guys have just missed the first part. हमने खाली अभी first part ही किया है. And both क्या कहते हैं carnivore and intermediates feed on fairy shrimps. Thus, it is likely that carnivores, sorry, my pen just got disconnected. So it's likely that the carnivores win the competition against the intermediates. Any questions? For those of you who have missed, I'll quickly go over it जल्दी से. अच्छा, सिनेरियो क्या है, उन्होंने हमें एक सिनेरियो दिया हुआ है कि हमारे पास क्या कहते हैं टेडपोल्स की एक पॉपुलेशन है, स्पिया मल्टीप्लिकाटा टेडपोल्स है, और उन्होंने हमें बता दिया है कि इन टेडपोल्स के क्या कहते हैं थ्री डिफरेंट फिनोटाइप्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उन तीन डिफरेंट फिनोटाइप्स के बारे में उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि डेट्राइटिस फीडर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स आर लार्ज, डेट्राइटिस फीडर्स आर स्मॉल, और हमारे पास क्या कहते हैं बीच में इंटरमीडिएट पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है विच वेरीज इन साइज। तो डिट्राइटिस फीडर्स एक्सट्रीम है, कार्निवोर्स एक्सट्रीम है, उनके बीच में इंटरमीडिएट पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है। दे गेव अस इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दीज थ्री पॉपुलेशंस, दोनों एक्सट्रीम्स के बारे में हमें बताया, इंटरमीडिएट्स के बारे में हमें बताया। डिट्राइटिस फीडर के बारे में हमें बताया कि वो क्या खाते हैं, उनके माउथ पार्ट्स कैसे हैं, उनके जॉ मसल्स कहते हैं, उनकी इंटेस्टाइन्स कैसी हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट्स के बारे में बताया कि इंटरमीडिएट्स हर किस्म का खाना खा लेते हैं, वो डेट्राइटिस को भी खा लेते हैं, एल्गी को भी खा लेते हैं, फेरी श्रिम्प्स को भी खा लेते हैं। फेरी श्रिम्प्स हमारे पास क्या कहते हैं एक फिश की टाइप होती है, आप लोगों ने शायद सुना सुना भी होगा, श्रिम्प्स लोग अक्सर खाते हैं प्रॉन्स की तरह। ठीक है, उसके बाद कार्निवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स हमारे पास लार्जेस्ट टाइप ऑफ एक्सट्रीम होता है इस पॉपुलेशन का, जो कि फेरी श्रिम्प्स को भी खाता है, बाकी स्मॉल एनिमल्स को भी खाता है, और उसके जो टीथ लाइक माउथ पार्ट्स होते हैं, लार्ज जॉ मसल्स होते हैं, शॉर्ट इंटेस्टाइन्स होती हैं। ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें बताई। और फिर उन्होंने हमें बताया कि हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं, दे काउंटेड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ टेडपोल इन टू डिफरेंट पॉन्ड्स, पॉन्ड वन एंड पॉन्ड टू। फिर उन्होंने साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशन हमें बताई कि इन पॉन्ड वन द साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट अ हाई डेंसिटी ऑफ टेडपोल इज देयर, एंड हाई डेंसिटी ऑफ टेडपोल तो है ही, मगर हमारे पास जो फूड है वो क्या कहते हैं लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, इट इज लो इन अबंडेंस। और हमारे पास ये भी उन्होंने नोटिस किया जब उन्होंने नंबर्स काउंट किए हर तरह के टेडपोल्स के, कि हमारे पास डेट्राइटिस फीडर्स और जो कार्निवोर्स हैं दे आर मोर इन कंपैरिजन टू इंटरमीडिएट्स। तो हमारे पास जो एक्सट्रीम्स हैं वो ज्यादा है और इंटरमीडिएट्स कम है। Describe and suggest explanations for the type of natural selection that appears to be acting in pond one। हमारे पास जो disruptive selection होती है वो एक ऐसी selection होती है जिसमें हमारे पास the extremes are favored and the selection pressure is working against the intermediates। तो हमने वही क्या कहते हैं आंसर में explain किया। Is this clear to to those of you who joined late? Your question? Miss this second part. Low abundance of food, क्या मतलब नहीं समझ आ रहा? Yes, miss.
लो अबंडेंस ऑफ फूड का मतलब ये है कि इस पॉन्ड में खाना कम है, सो द कंपटीशन इज ऑफ फूड, फूड लिमिटेड है। अबंडेंस का मतलब होता है ज्यादती, किसी चीज का बहुत होना। लो अबंडेंस ऑफ फूड का मतलब है कि हमारे पास खाना कम मौजूद है इस पॉन्ड में, ठीक है। सो क्योंकि खाना कम मौजूद है तो हमारे पास ज्यादा कंपटीशन होगा, ज्यादा कंपटीशन होगा, सो लाइकली है कि एक क्या कहते हैं जो फिनोटाइप है। सॉरी मिस, आई डोंट गेट द क्वेश्चन वांट्स फ्रॉम अस। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि हमारे पास जो ये डेटा है, इस डेटा से हम बताएं कि हमारे पास कौन सी टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हुई है। स्टेबलाइजिंग हुई है, डायरेक्शनल हुई है, या डिसरप्टिव हुई है। If you look at the third pointer, it is saying that most of the tadpoles they counted were either detritus feeders or carnivores with very few intermediates present. Detritus feeders and the carnivores are basically two extremes. Detritus feeders are very small, carnivores are large, और बाकी की जो intermediate population है वो बीच में exist कर रही है। हमारे पास इस पॉन्ड में एक्सट्रीम फिनोटाइप ज्यादा है, इंटरमीडिएट्स कम है। ऐसी नेचुरल सिलेक्शन कौन सी होती है? डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन होती है, राइट मुताहर? एंड ऑल्सो हमारा आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया लो अबंडेंस ऑफ फूड का क्या मतलब है? Yes, miss. ठीक है। लो अबंडेंस ऑफ फूड का मतलब है कि खाना कम है, देयर इज लिमिटेड फूड सप्लाई, ठीक है। मिस लाइक बाद में या फिर लाइक उन्होंने बस एक ऑब्जर्वेशन किया है एक पॉइंट के ऊपर, उसके अंदर ओवरऑल ही मतलब खाना कम है। हाँ, जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है ना, उन्होंने बताया कि डेट्राइटिस क्या खाते हैं, इंटरमीडिएट्स क्या खाते हैं, कार्निवोर्स क्या खाते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि उनके पास क्या खाना अवेलेबल है भी जो वो खाते हैं कि नहीं है। तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि उस पॉन्ड में जो क्या कहती हैं फूड है फॉर दीज टेडपोल्स, दैट इज रिलेटिवली लो, दैट इज लिमिटेड, तो कंपटीशन ज्यादा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्या कहते हैं पॉन्ड टू की ऑब्जर्वेशंस पे। अच्छा जी, इन पॉन्ड टू देयर इज अ लो डेंसिटी ऑफ टेडपोल्स, टेडपोल्स की पॉपुलेशन कम है। However, there is sufficient food availability for all tadpoles. That most of the tadpoles they counted were intermediates with fewer detritus feeders or carnivores. तो हमारे पास यहाँ पर इंटरमीडिएट पॉपुलेशन ज्यादा है, एक्सट्रीम्स हमारे पास कम है। Describe and suggest explanations for the type of natural selection that appears to be acting in pond one. ठीक है, हमारे पास क्या कहते हैं, um, हमें क्या देना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी नेचुरल सिलेक्शन है। तो ऑब्वियसली स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होगी। एक मार्क हमें मिल जाएगा आइडेंटिफिकेशन पर, एक मार्क हमें इसको एक्सप्लेन करने के पर मिल जाएगा। सो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हमने क्यों आइडेंटिफाई किया है? बिकॉज हमारे पास द इंटरमीडिएट्स आर फेवर्ड या खाली इतना भी लिखना काफी है? एक्सट्रीम्स का अगर हम ना भी लिखें दैट द एक्सट्रीम फिनोटाइप्स आर नॉट सेलेक्टेड, वो भी चलेगा। या लिख दो, सेफ साइड लिख दो भाई, बिकॉज द इंटरमीडिएट्स आर फेवर्ड एंड द एक्सट्रीम phenotypes are not selected as much. इसका हम क्या रीजन दे सकते हैं? हमारे पास देखो, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हमेशा ज्यादातर तब होती है जब हमारे पास कोई बहुत सिवियर सिलेक्शन प्रेशर, कोई बहुत सिवियर कंपटीशन एग्जिस्ट ना करे। अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो लाइकलीहुड क्या होता है कि हमारे पास जो इंटरमीडिएट पॉपुलेशन है वो सर्वाइव आराम से कर रही होती है। क्योंकि अगर कोई सिलेक्शन प्रेशर नहीं है ना, तो हमारे पास क्या कहते हैं इन जनरल, आई थिंक सो समबडी आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्यों आता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमेशा हमारे पास, अगर आप देखो हमारे पास एक नॉर्मल पॉपुलेशन कैसी दिखाई देती है, ऐसी ही दिखाई देती है। तो हमारे पास क्या कहते हैं नेचुरली क्या होता है कि हमारे पास जो एक्सट्रीम्स है वो कम ही होती हैं। नेचुरल जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या कहते हैं ग्राफ देखते हो, तो उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ में जो आपके एक्सट्रीम फिनोटाइप्स होते हैं ना, वो क्या कहते हैं
कम होता है। ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। आप कोई भी पॉपुलेशन उठा लो, मैंने शायद हाइट की एग्जांपल दी थी आप लोगों को जब ये क्वेश्चन रेज हुआ था, कि बहुत छोटे लोग और बहुत लंबे लोग रेयर होते हैं पॉपुलेशन में। बाकी जो इंटरमीडिएट हाइट्स होती हैं वो हमें ज्यादा दिखाई दे रही होती हैं। सो इंटरमीडिएट पॉपुलेशन अगर ज्यादा है, या क्या कहते हैं स्टेबलाइजिंग ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इसका ये मतलब है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है, कोई बहुत सिवियर सिलेक्शन प्रेशर एग्जिस्ट नहीं कर रहा विच इज फेवरिंग द एक्सट्रीम्स। यहाँ पर हम कैसे कह सकते हैं, या हम कैसे या ऑल्सो द बर्थ वेट ऑफ बेबीज, एग्जैक्टली, बहुत क्या कहते हैं लेस बर्थ वेट वाले या बहुत ओवरवेट बेबीज नहीं एग्जिस्ट करते। वो क्या कहते हैं हमारे पास इतना कॉमनली हमें नजर नहीं आते ऐसे एक्सट्रीम फिनोटाइप्स। यूजुअली जो इंटरमीडिएट्स हैं दे आर प्रेफर्ड। तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप ये जो स्टेटमेंट देखो, सफिशिएंट फूड अवेलेबिलिटी फॉर ऑल टेडपोल्स, सारे टेडपोल्स आराम से अपने हिसाब से जी रहे हैं, किसी को कोई मसला नहीं है, किसी को कोई खतरा नहीं है। सो इससे हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास देयर इज लिटिल कंपटीशन, एंड बिकॉज देयर इज लिटिल कंपटीशन, um सिलेक्शन प्रेशर कहना एग्जैक्टली सही नहीं होगा मिशाल, वी कैन जस्ट सिंपली से दैट देयर इज लिटिल कंपटीशन, दैट वुड बी अ मोर बेटर टर्म टू यूज ओवर हियर, देयर इज लिटिल कंपटीशन, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अगर लिटिल कंपटीशन है तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि हमारे पास सारे फिनोटाइप्स को क्या कहते हैं, देन व्हाई डू द एक्सट्रीम्स डोंट सर्वाइव। दे आर नॉट सेइंग कि एक्सट्रीम्स हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही, दे आर सेइंग एक्सट्रीम्स हैं बट वो फ्यूअर एक्सट्रीम, मतलब फ्यूअर नंबर्स ऑफ द एक्सट्रीम्स। और अभी मैंने जो इतनी तमहीद बांधी वो यही एक्सप्लेन करने के लिए बांधी कि नेचुरल सर्कमस्टांसेस एक्सट्रीम्स होती ही फ्यू हैं। हमारे पास जब डिसरप्टिव सिलेक्शन होती है ना, सिर्फ तब हमारे पास एक्सट्रीम्स बढ़ती हैं, या हमारे पास अगर डायरेक्शनल सिलेक्शन हो रही है तब हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर एक्सट्रीम की तरफ ग्राफ शिफ्ट होता है। अदरवाइज हमारे पास क्या कहते हैं जो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है उसमें आप हमेशा यही देखोगे कि अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस द एक्सट्रीम्स आर फ्यूअर, ठीक है अमर। एंड टू द रेस्ट ऑफ यू ये बात समझ आ रही है कि नॉर्मल सिचुएशंस में क्या होता है कि हमारे पास नेचुरली जनरली जो एक्सट्रीम्स होती हैं वो फ्यू ही होती हैं। ओके, अच्छा तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज लेस कंपटीशन एंड thus the intermediates. Amit, we just have to do two questions. ठीक है, तो जब भी वो questions end हो जाएंगे हमारे तो class off हो जाएगी। ठीक है, clear हो गया ये part? Any questions? अच्छा जी, next part. The intestine length of S multiplicata tadpoles shows continuous variation. Sketch a curve of figure 7.2 to show how intestine length varies in the tadpole population. Continuous variation का curve क्या होता है, bell shaped curve होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, तो हमें कंटिन्यूअस वेरिएशन का कर्व बना देंगे। मेरा थोड़ा सा क्या कहते हैं इस तरफ टिल्टेड कर्व है, yeah. So I'm assuming pretty straightforward this question was. Okay. A student suggested that the variation in S multiplicata tadpoles could lead to sympatric speciation in some populations. आउटलाइन द फीचर्स ऑफ सिम्पैट्रिक स्पीसीएशन, हमें कुछ इसको रिलेट नहीं करना टेडपोल से, कुछ हमें एनवायरनमेंट से रिलेट नहीं करना, हमें सिंपली दो पॉइंटर्स बताने हैं सिम्पैट्रिक स्पीसीएशन के। सो व्हाट हैपेंस इन सिम्पैट्रिक स्पीसीएशन, व्हाट आर द टू फीचर्स और टू पॉइंटर्स, इट अकर्स, ठीक है, लोकेशन चेंज नहीं हो रही होती, परफेक्ट। लेकिन अगर लोकेशन चेंज नहीं हो रही है तब क्यों हमारे पास स्पीसीएशन हो रही है? um Yeah, change in allele frequency, but change in allele frequency comes as a result of something, ना बता? अच्छा, right. So there is the same geographical location, but different environmental factors exist due to which there are different selection pressures, which leads to the change in allele frequency, ठीक है? But that always the allele frequency, if it's changing, it is occurring not randomly, it is not occurring spontaneously, it is because of something. So you mentioned that thing before, and then you say that this particular reason is causing the change in allele frequency, ठीक है? So sympatric speciation occurs
in the same geographical location where due to different environmental factors, different selection pressures act on the population, leading to the formation of new species. If you want to mention, तो you can also add this line कि एक दफा अगर न्यू स्पीसीज बन गई हैं तो ये न्यू स्पीसीज आपस में क्या होंगी, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होंगी, इनके दरमियान रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होंगी। 2 मार्क का सवाल है तो आपको 2 मार्क्स किस पे मिल जाएंगे, सेम ज्योग्राफिकल लोकेशन मेंशन करने पे और ये बताने पे कि डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर एक्ट कर रहा होगा पॉपुलेशन पे। लेकिन अगर ये 3 मार्क्स का सवाल होता तो फिर आप ये टर्म जरूर मेंशन करते कि न्यू स्पीशीज जो बन रही हैं ये स्पीशीज आपस में क्या होंगी, दे वुड हैव रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब ये आपस में कंपैटिबल टू रिप्रोड्यूस नहीं है, ठीक है, या आप इसको ऐसे कहोगे एंड दी स्पीशीज वुड बी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ना। हमारे पास देखो पहले तो ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं थी ना मिसाल, जब हमारे पास डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर्स हुए तो basically you can connect it with the fact कि because there were different selection pressure that क्या कहते हैं that made them reproductively isolated and hence there was no gene flow and hence a new species was formed। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सही है। सो मैं बस सिंपली ये मेंशन करना चाह रही थी कि अगर ये 3 मार्कर का सवाल होता तो आप रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की बात जरूर करता। सो वो आप कहीं पर भी फिट इन कर सकते हैं अपने आंसर में, आप कर लेते। अगर आप इस पॉइंट पे करना चाहो दैट वुड बी ग्रेट एज वेल। हाँ हाँ, मैं बस उसको ये समझा रही हूँ कि और कहाँ पर ऐड हो सकता था। आप यहाँ पर लिख लेते अकर्स इन द सेम ज्योग्राफिकल लोकेशन, यू कैन से यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर लिख लो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अराइजेस और मैं आगे लिख दूंगी फॉर 3 मार्क्स, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अराइजेस एज डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और फिर जो बाकी का क्वेश्चन है वो आप एज इट इज कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आप ऐड कर लेते इफ इट कम्स फॉर 3 मार्क्स। सही है। हाँ, मेरा ग्राफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनेगा। ओके श्योर अमर। सिम्पैट्रिक और एलोपैट्रिक स्पीसीएशन क्या होती है? एलोपैट्रिक स्पीसीएशन तब होती है जब हमारे पास कोई ज्योग्राफिकल बैरियर आ जाए स्पीशीज के दरमियान और उस ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से वो जो स्पीसीज है वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाए। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होने का मतलब ये है कि वो रिप्रोड्यूस ना कर सके, मेट ना कर सके, जिसकी वजह से उनके दरमियान कोई जीन फ्लो नहीं हो रहा होगा, कोई एक्सचेंज ऑफ जीन्स नहीं हो रही होंगी। इसको हम जेनेटिक आइसोलेशन बुलाते हैं। अब हमारे पास अलग अलग एरियाज में वो स्पीसीज सेपरेट हो गई हैं, अलग अलग एरियाज के डिफरेंट एनवायरनमेंट्स होंगे, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैं तो डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर्स एक्ट कर रहे होंगे, डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर्स दोनों जगहों पर एक्ट कर रहे हैं तो डिफरेंट तरीके से एलील फ्रीक्वेंसी अफेक्ट हो रही होगी। एंड ओवर टाइम हमारे पास एक एरिया में एक पर्टिकुलर एलील बढ़ जाएगी, एक एरिया में दूसरी एलील बढ़ जाएगी एंड ओवर मेनी जनरेशंस वो चेंज इतना ज्यादा आ जाएगा कि अगर मैं एरिया ए और एरिया बी की स्पीसीज को आपस में साथ रख दूं सो दे वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, जिसकी वजह से वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे एंड थस वी वुड से दैट दीज टू आर नो लॉन्गर द सेम स्पीसीज बट डिफरेंट स्पीसीज। सो एलो मीन्स डिफरेंट, पैट्रिक मीन प्लेस। एलोपैट्रिक स्पीसीएशन कब होती है? जब ज्योग्राफिकल लोकेशन स्पीसीज की चेंज हो जाए। सिम्पैट्रिक स्पीसीएशन का क्या मतलब है? S फॉर सिम्पैट्रिक, S फॉर सेम। सो सेम प्लेस स्पीसीएशन इज सिम्पैट्रिक स्पीसीएशन। एक ही ज्योग्राफिकल लोकेशन है लेकिन उस ज्योग्राफिकल लोकेशन में एक जगह डिफरेंट एनवायरमेंटल प्रेशर है, एक जगह डिफरेंट एनवायरमेंट है। अब उस दिन भी क्वेश्चन ये रेज हुआ था कि एक जगह पे डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं, तो हमें लगता है कि एक जगह, एक बहुत छोटी सी जगह को ये लोग बुला रहे हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन की जब बात हो रही होती है तो एक पूरा यू कैन से
लेट्स से एक ऐसा बड़ा सा एरिया जहां पर दूर दूर तक कोई माउंटेन कोई रिवर सेपरेट नहीं कर रहा, कोई नेचुरल बैरियर एक जोग्राफिकल लोकेशन में अगर एग्जिस्ट नहीं करता, दैट कुड बी लाइक 4 5 कंट्रीज का एक अगर आप ले लो मैप पे जगह, और वहां पे बीच में ना कोई माउंटेन है ना कोई क्या कहते हैं रिवर है, जिसको एक ही जोग्राफिकल लोकेशन समझा जा सकता है। वहां पर एक इतने बड़े एरिया में मैंने एग्जांपल दी थी कि एक मुल्क में ही सेम एनवायरमेंटल कंडीशंस बहुत दफा नहीं होती, तो हमारे पास एक ज्योग्राफिकल लोकेशन में इट इज पॉसिबल कि डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस हो। डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगे, डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर्स होंगे, डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर्स होंगे, डिफरेंट एलियस वुड बी फेवर्ड अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल फैक्टर ऑब्वियसली। इतना ज्यादा वो ओवर टाइम रिपीट हो जाएगा कि अगेन वो जो स्पीसीज है फिर आपस में वो इंटरब्रीड करके क्या कहते हैं नई फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, दैट नाउ देयर आर टू डिफरेंट स्पीसीज। Yeah, in both conditions there will be different environmental factors. Allopatric में different places हैं, इस वजह से different environmental factors हैं। Sympatric में place same है, geographical location same है, लेकिन environmental factors different हैं। ठीक है। अच्छा जी। Figure 7.3 shows the evolutionary relationships between three species of American spadefoot toad. ये हमारे पास एक phylogenetic diagram आ गई है। It is something very similar to what we did yesterday. नाउ सी हमारे पास जो ये टाइमलाइन है इसकी अगर आप की ही पढ़ लो, इट्स मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, तो हमारे पास जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है वो बहुत बहुत लंबा प्रोसेस है। इट इज अ फाइलोजेनेटिक डायग्राम, इसको हम फाइलोजेनेटिक ट्री डायग्राम बुलाता है। ओके, explain how analysis of DNA allowed the evolutionary relationships shown in figure 7.3 to be determined. What? I was just reading the question. मैं बस ये कह रही थी कि हमारे पास millions of years लग जाते हैं evolution होने में. It's not a very quick process. और मैंने इस diagram का मतलब बताया था, name बताया था कि इस diagram को phylogenetic tree diagram बुलाया जाता है। अच्छा, now ये हम क्वेश्चन कल देकर आ चुके हैं, हमारी कल की पूरी क्लास was on this. So I want you guys to give me 3 pointers as of how we can analyze DNA to identify evolutionary relationships. I'm going to grab myself water. By the time I come back, I want answers in the chat box. Okay, perfect. So basically, analysis of DNA हम कैसे करेंगे? हम basically क्या करेंगे? हमारे पास we will analyze the base sequence of all three species. हमारे पास 3 ही species हैं, तो हमारे पास हम all three species लिख देंगे। Find the similarities in the base sequences, the species which have the least differences, or you can say small differences. या बिकॉज यहाँ पर उन्होंने डीएनए बोल दिया है ना, तो वी आर बाउंड टू टॉक अबाउट द डीएनए बेस सीक्वेंस। अगर वो हमें मॉलिक्यूल बाउंड ना करते तो हम प्रोटीन्स की बात कर सकते थे या फिर हम डीएनए की बात कर सकते थे, बिकॉज दे टोल्ड अस कि हम एनालिसिस कर ही डीएनए का रहे हैं, इसीलिए हम बेस सीक्वेंस की बात कर रहे हैं और अमीनो एसिड सीक्वेंस की बात नहीं कर रहे। वुड बी क्लोजली रिलेटेड, would share the most common ancestor, most common recent ancestor. Okay, clear है? Any questions? There are 3 new methods. Okay. Now next questions. ये वाला तो हमारा क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो इसके लिए आप लोग सब अपने हिफाजती बंद बांध लें। अच्छा, इसकी जो हमारे पास, okay, sure, I can show it. I'll share the document after the class, so you guys would have access to this document. Okay.
यहाँ पर एक एक जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो मैं हाईलाइट करती जाऊंगी सारी इंपॉर्टेंट चीजें। I would have received it. शायद मैंने दे भी दी होगी आपको access. I think so. I've given access to all the requests that I received for that account, for that document. अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है? There are two subspecies of reindeer, something something rangifer, live in North America. Members of the different subspecies belong to the same species but have some morphological differences and are found in different geographical locations. Subspecies एक स्पीसी के ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं। सब स्पीसीज क्या होते हैं कि हमारे पास एक ही स्पीसी के, लेट्स से ये हमारे पास स्पीसी है, उसके फर्दर सेक्शंस होते हैं। तो स्पीसीज में भी हमारे पास सब स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं। सो ये जो रेन डियर है इसकी दो सब स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं जो कि कहाँ रह रही है, नॉर्थ अमेरिका में रह रही है। और जो ये सब स्पीसीज है इनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं and they are also found in different geographical locations. Figure 5.1 shows us a reindeer. Table 5.1 compares the features of the two North American reindeer subspecies. Habitat. हमारे पास जो woodland species है, woodland subspecies, उनका जो habitat है, it is relatively warmer. उन्होंने हमें बता दिया कि वो southern woodland में रहते हैं और south में जो conditions हैं, they are warmer. और हमारे पास जो दूसरी सब स्पीसी है वो कहाँ पर रहती है, बैरन ग्राउंड सब स्पीसी है। वो बैरन ग्राउंड बेसिकली आर लाइक डेजर्ट, ड्राई बैरन एरियाज। वुडलैंड इज कंपैरेटिवली क्या कहते हैं, ट्री से भरा हुआ होता है, थोड़ा सा क्या कहते हैं हरा भरा होता है। बैरन लैंड बिल्कुल बंजर सा होता है। ठीक है, उन्होंने हमें वेदर कंडीशंस भी बता दिए हैं कि साउथ में वार्म कंडीशंस हैं, नॉर्थ में कोल्डर कंडीशंस है। फिर टाइप ऑफ फूड बता दिया है, ट्री लीव्स और ग्रास खाते हैं बिकॉज एज आई मेंशन वुडलैंड हरे भरे होते हैं। बैरन ग्राउंड वाले जो हैं वो लिचन्स और मॉसेस खाते हैं। आर यू गाइस फेमिलियर विद लिचन्स एंड मॉसेस? या फिर अगर नहीं आइडिया है आई वुड जस्ट सजेस्ट कि जल्दी से गूगल करके देख लो कि लिचन्स एंड मॉसेस कैसे दिखते हैं। अच्छा जी, ये जो दो लव्स हैं, बल्कि यही वाला जो पॉइंट है, I want you guys to tell me what do you guys understand by summer and winter feeding grounds overlap? क्या समझ आ रही है इस टर्म से, इस फ्रेज से? यस, वेरी गुड। सो बेसिकली समर एंड विंटर फीडिंग ग्राउंड्स, कुछ स्पीसीज हमारे पास ऐसी होती हैं जो समर में एक जगह खाना खाती हैं, विंटर में अलग जगह खाना खाती हैं। और अगर उनका समर में ईटिंग एरिया और विंटर में ईटिंग एरिया सेम है तो हम ये कहते हैं कि द समर एंड द विंटर फीडिंग ग्राउंड्स ओवरलैप, दे आर द सेम। सो जो हमारे पास वुडलैंड सब स्पीसीज हैं, दे डू नॉट चेंज लोकेशंस इन समर एंड विंटर, एंड उनका जो समर एंड विंटर फीडिंग ग्राउंड होता है वो ओवरलैप करता है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? एनीबडी हु हैज कंफ्यूजन अबाउट द स्टेटमेंट? ठीक है। On the contrary, हमारे पास the summer and winter feeding grounds do not overlap for the barren ground subspecies. उनका क्या कहते हैं, अलग अलग जगहों पर वो खाना खाते हैं in summers and in winters. Carry out long migrations. हमारे पास woodland subspecies do not carry out long migrations, but the barren ground subspecies do carry out long migrations. Can you guys tell me the explanation for this point? क्यों माइग्रेशन कर रहे हैं हमारे पास वुडलैंड, क्यों माइग्रेशन कर रहे हैं हमारे पास बैरन ग्राउंड सब स्पीसीज, और क्यों माइग्रेशन नहीं कर रहे वुडलैंड स्पीसीज? टेक अ मोमेंट एंड थिंक। सो द वंस हु आर माइग्रेटिंग, दे आर माइग्रेटिंग फॉर फूड। Is this somehow related to the previous wala point? Do you agree or do you disagree or do you don't understand? Do you not understand? अग्री। देखो, जिनका क्या कहते हैं समर एंड विंटर फीडिंग ग्राउंड एक ही है, उनको जगह नहीं बदलनी, तो हमारे पास क्या कहते हैं, अगर जगह नहीं बदलनी तो उनको माइग्रेशन करने की, इतना दूर चल के जाने की क्या जरूरत है? उनको तो वहीं बैठे बैठे क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है ना उसी एरिया में, सो दे डू नॉट हैव टू माइग्रेट।
ऑन द कॉन्ट्ररी जिनका समर एंड विंटर फीडिंग ग्राउंड फर्क है, तो हमारे पास क्या कहते हैं, उनको माइग्रेट करना पड़ेगा विंटर से, क्या कहते हैं, समर से विंटर में जब हमारे पास शिफ्ट ऑफ सीजन आएगा तो उनके फीडिंग ग्राउंड्स भी बदलेंगे, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, दे वुड हैव टू माइग्रेट। अच्छा जी, बॉडी साइज हमारे पास वुडलैंड सब स्पीसीज का बॉडी साइज लार्ज है, बैरन ग्राउंड सब स्पीसीज का बॉडी साइज स्मॉल है। उसके बाद क्या कहते हैं, जो कलर ऑफ फर है, फॉर वुडलैंड सब स्पीसीज दैट इज डार्क, बैरन ग्राउंड सब स्पीशीज का फर कलर लाइट है। अब आ जाते हैं हम सवाल पर। अच्छा, पहला सवाल इसका रिलेटिवली आसान है। The first part says, during the last ice age, an ice sheet separated southern and northern populations of Arcturus in North America. Explain how this ice sheet affected the evolution of Arcturus to result in the two different subspecies. Now, क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन हमसे? Very good. It's talking about allopatric speciation. क्यों allopatric speciation? हमारे पास क्या कहती हैं, एक आइस शीट आ गई थी जिसने क्या कर दिया था, सेपरेट कर दिया था सदर्न एंड नॉर्दर्न पॉपुलेशन को. सो वी सिंपली से दैट geographical isolation led to allopatric speciation. The two groups of population could not interbreed, and hence there was no gene flow. Between them. वही वाली बात, in different locations, different selection pressures were exerted. Okay, pretty straightforward. Let's come to the next part, which is thoda bahut challenging and would require some brain power and class participation. So I want you guys to focus over here now. Assess the relative importance of natural selection and genetic drift in producing the different colors of fur of the two subspecies of reindeer. Now let's quickly go back to the table. हमारे पास जो woodland subspecies हैं, they have a dark fur color, and the barren ground subspecies, they have a light fur color. What do you guys think about this? हमारे पास, again, think about the habitat where they are living, and इसीलिए मैंने habitat को पिक्चराइज करने के लिए कहा था, और मैंने वुडलैंड के बारे में बताया था कि वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारे पास बहुत सारे वो होते हैं, दरख्त वगैरह ये सब हो रहे होते हैं. नाउ हमारे पास इफ देयर आर मोर ट्रीज इन एन एरिया, ठीक है, अगर हमारे पास जंगलात में अगर हम चले जाओ 2 मिनट के लिए, इमेजिन अ जंगल, व्हाट कलर इज प्रीडोमिनेंट इन वुडलैंड? क्या कलर प्रीडोमिनेंट होगा? क्या ग्रीन तो होगा ही, बट उसके साथ साथ हमारे पास जो, हमारे पास मैं वुडलैंड का कलर पूछ रही हूँ कि हमारे पास अगर एक एरिया है जहां पर, इमेजिन अ जंगल, ठीक है, एक जंगल होगा और इसमें बहुत सारे दरख्त हैं, वुडलैंड, तो वहां पर कौन सा कलर प्रीडोमिनेंट होगा उस हैबिटेट में? वुड, ब्राउन कलर, राइट? तो अगर हमारे पास डार्क शेड का फर है रेनडियर का, उससे क्या फायदा हो सकता है इस स्पीसी को? वेरी गुड, कैमोफ्लाज. तो हमारे पास दैट इज वाई क्या कहते हैं, जो भी क्या कहते हैं
कहीं पर भी कोई भी पेपर अटेम्प्ट करो सिलेक्शन एवोल्यूशन का, कोई ऐसा हैबिटेट आ जाए, बिकॉज आई नो हम सबको ज्योग्राफी पढ़े हुए काफी टाइम हो गया है, और नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी हम वो वाले बच्चे हैं नहीं, वो पिछले मिलेनियल्स थे जो नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी इतना देखते थे शौक से। तो इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ अ पर्टिकुलर क्या कहते हैं habitat when you're reading a paper, forget the paper for a second and just go and see the pictures of that habitat. Be familiar with all kinds of habitat. जितने habitat explore कर सकते हो करो. It would help you क्या कहते हैं with biodiversity and with selection evolution. अच्छा जी, तो हमारे पास the different colors of the fur of the two subspecies of reindeer. तो हमारे पास अच्छा, is this an example of natural selection or is it an example of genetic drift? अगर कोई प्रोटेक्ट हो रहा है प्रेडेटर से तो ये नेचुरल सिलेक्शन है. वेरी गुड, इट्स नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्टली वेरी गुड मुतार सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जहां पर भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आ जाएगा आंख बंद करके नेचुरल सिलेक्शन हमने आइडेंटिफाई करना है. सो वी हैव टू से द डिफरेंस in fur colors arise due to natural selection as the reindeers in woodland with dark fur color with a better camouflage from predators. अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरे पार्ट पे, इसी क्वेश्चन के. Assess the relative importance of natural selection and genetic drift in producing the different body sizes of the two subspecies of reindeer. अब body sizes देखते हैं. Large body size है and small body size है. ठीक है, large body size है वार्मर हैबिटेट में, स्मॉल बॉडी साइज है कोल्डर हैबिटेट में. क्या लग रहा है लार्ज और स्मॉल साइज होना in these particular habitats, is this an advantageous or an adaptive behavior? What do you guys think? um I'm वो पढ़ा है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में? या आई नो दिस इज वन चैलेंजिंग पार्ट, और मैंने इसके लिए फिनिश आई थिंक सो पहली दफा जिंदगी में किसी क्लास से पहले ईआर इतनी डिटेल से पढ़ी होगी. अच्छा, एक चीज इमेजिन करो, या इमेजिन भी नहीं करो, लॉजिकली मुझे बताओ. um ओ लेवल बायो में या फिर क्या कहते हैं उसमें फिजिक्स में कहीं पर ये पढ़ा था कि हमारे पास जो बॉडी साइज होता है वो किस तरह से हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी के मैकेनिज्म को इन्फ्लुएंस करता है. हैव यू गाइस स्टडीड दैट? कि हमारे पास बॉडी साइज और हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी का क्या कनेक्शन होता है? एनी रिकलेक्शंस, एनी इंफॉर्मेशन? अच्छा, हमारे पास मोर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो अगर होगा तो क्या ज्यादा हीट लॉस होगा या कम हीट लॉस होगा? मैं सरफेस एरिया नहीं करी, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो की बात करी. सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होगा तो हीट लॉस ज्यादा होगा. कैन यू गाइस टेल मी between surface area and to volume ratio, large animal और small animal में किसका surface area to volume ratio ज्यादा होगा? स्मॉल का ज्यादा होगा. नाउ स्मॉल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, स्मॉल बॉडी साइज का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा है, हीट लॉस ज्यादा है. राइमा वो पढ़ी है केमिस्ट्री में, सरफेस जैसे जैसे आप किसी भी चीज को छोटा कर दोगे तो हमारे पास क्या कहते हैं उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ता है.
ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि जितनी छोटी चीज उतना उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा है, इसलिए मैंने सरफेस एरिया नहीं बोला, मैंने सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बोला है। Smaller the object, greater is the surface area to volume ratio. Yeah. हाँ, माइक्रोवेलाई का भी यही होता है, surface area to volume ratio ज्यादा होता है। So smaller the object, greater the surface area to volume ratio, greater the heat loss. यानी कि बॉडी में हीट कम रिटेन होती है स्मॉल साइज्ड एनिमल्स में। आर यू ऑल एबल टू मेक सेंस ऑफ इट? कोई ऐसा जिसको ये कनेक्शन समझ नहीं आ रहा है? ये सब एक बार क्वेश्चन प्लीज दिखा सकते हैं दोबारा? सर्विस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, बेटा कोई भी चीज अगर छोटी होगी ना उसका सर्विस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होगा। हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं, एक 5 ग्राम का मैग्नीशियम का ब्लॉक ब्लॉक लो और उसको बहुत सारे पीसेस में तोड़ दो, तो हमारे पास ये कहते हैं पाउडर्ड मैग्नीशियम का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड ब्लॉक ऑफ मैग्नीशियम। इज दैट व्हाट हैपेंस इन केमिस्ट्री? क्यों होता है? हमने एक बड़े ब्लॉक को जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया तो हमारे पास ये कहता है उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ गया। तो अ स्मॉलर थिंग हैज अ ग्रेटर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। ठीक है ना? हमारे पास अगर ज्यादा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होगा तो हमारे पास जो हीट है वो क्या कहते हैं उस सरफेस से ज्यादा लूज हो रही होगी ना। अगर हीट लॉस ज्यादा है, हीट लॉस ज्यादा हो रहा है बॉडी से, तो बॉडी के अंदर हीट नहीं रिटेन हो रही है। नाउ दिस ऑर्गेनिज्म इज लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट। अगर इस ऑर्गेनिज्म में ये कोल्ड क्लाइमेट में रह रहा है और ये हीट अपने अंदर रिटेन नहीं कर रहा, उसकी हीट ज्यादा लूज हो रही है, इज इट एन अडेप्टिव बिहेवियर और इज इट अ डिसएडवांटेजेस बिहेवियर फॉर दिस ऑर्गेनिज्म? तो क्या यहाँ पर कोई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या हमारे पास जो एडवांटेजेस ट्रेट फिनोटाइप जो भी हम प्रेफर करते हैं, क्या वो हो रहा है? नहीं हो रहा। तो हमारे पास ये कोई रैंडम किसी वजह से हुई होगी ये चीज, राइट? समथिंग रैंडम इज कॉन्फरिंग फॉर दिस बिहेव नॉट बिहेवियर फॉर दिस फिनोटाइप। हाँ, बैड लक इज रैंडम, राइट? डू यू ऑल एग्री कि रैंडम चीज हो रही है, कोई एक स्ट्रक्चर्ड नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रही? बिटवीन जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन कौन सी चीज रैंडम होती है? और मैंने कहा भी था जेनेटिक ड्रिफ्ट ये नहीं सोचती कि कहते हैं सही है कि गलत है, वो तो एक बहुत रैंडम प्रोसेस होता है, वो किसी को फेवर नहीं कर रही होती, उसको तो जो मतलब हाथ लग जाए वो हो जाता है। तो ये हमारे पास केस हो सकता है जेनेटिक ड्रिफ्ट का, नेचुरल सिलेक्शन का नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात नहीं हो रही। आर यू ऑल एबल टू मेक सेंस ऑफ इट? आई नो थोड़ा सा ये चैलेंजिंग पार्ट था, इट इज नॉट एन इजी पार्ट, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। तो अगर ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है, इट्स नॉर्मल। क्या कंफ्यूजन है मिशाल? सिंस स्मॉल बॉडी साइज is not an adaptive behavior, हमें कैसे पता कि हमें इसको टेम्परेचर से रिलेट करना है? टेबल में तो इतनी सारी और चीजें हैं। sorry can you repeat Rama? So, मैं इसलिए कह रही Rama हूँ कि can you हमें कैसे repeat? पता है कि हमें टेम्परेचर से रिलेट करना है इस वाले पॉइंट को? बिकॉज टेबल में तो काफी चीजें हैं ना। ये क्या कहते हैं, आपको सारी चीजें रीड अपॉन करनी होंगी। देखो फूड की स्कार्सिटी नहीं है, ठीक है? फूड हमारे पास यहाँ पर भी है, फूड हमारे पास यहाँ भी है, तो फूड की स्कार्सिटी की वजह से तो नहीं हो रहा होगा, राइट? बिकॉज दे हैव नॉट टोल्ड अस एनीवेयर कि हमारे पास जो फूड है वो स्कार्स है, फूड हमारे पास कम है, दे हैव नॉट एट ऑल टोल्ड अस एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है? हमारे पास क्या कहते हैं अच्छा एक और चीज हमारे पास, वेरी गुड राइमा, एक और पॉइंट मुझे इससे ध्यान में याद आ गया, एक और पॉइंट, माइग्रेशन। माइग्रेशन कौन कर रहा है यहाँ पे? वुडलैंड स्पीसीज कर रहे हैं या बैरन ग्राउंड स्पीसीज कर रहे हैं? बैरन ग्राउंड स्पीसीज कर रहे हैं। और हमारे पास क्या कहते हैं हमने क्या पढ़ा था जेनेटिक ड्रिफ्ट में, क्या होता है कि हमारे पास एक छोटी पॉपुलेशन सेपरेट हो जाती है ओरिजिनल पॉपुलेशन से, और वो यूजुअली किसकी वजह से होता है? माइग्रेशन की वजह से होता है। सो दिस ऑल्सो सपोर्ट्स कि हमारे पास जेनेटिक ड्रिफ्ट
कि एक वजह अक्सर क्या होती है, माइग्रेशन होती है. सो बिकॉज दे आर ऑल्सो माइग्रेटिंग, दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग अस इन आइडेंटिफाइंग दैट हमारे पास बैरन ग्राउंड सब स्पीसीज में क्या हुई होगी, जेनेटिक ड्रिफ्ट हुई होगी. इज दिस मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू, माइग्रेशन वाली बात? अभी तो हमने इतना डिस्कशन किया कि हमारे पास जो स्मॉल बॉडी साइज है, दैट इज नॉट एन अडेप्टिव बिहेवियर. देखो, हमारे पास एक बात याद रखो, अगर कभी भी क्वेश्चन आए नेचुरल सिलेक्शन का इन कंपैरिजन विद जेनेटिक ड्रिफ्ट, यू हैव टू सी कि हमारे पास कौन सा ट्रेट जो है वो अडेप्टिव है. अगर ट्रेट अडेप्टिव है तो हमारे पास क्या कहते हैं, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन. यहां पर स्मॉल बॉडी साइज इज नॉट एन अडेप्टिव ट्रेट. स्मॉल बॉडी साइज इज अ डिसएडवांटेजियस ट्रेट, क्योंकि इससे ज्यादा हीट लॉस हो रही है. और ये ऑर्गेनिज्म अगर एक कोल्ड क्लाइमेट में ज्यादा हीट लॉस कर रहा है और एनवायरनमेंट भी कोल्ड है, तो ये एक क्या चीज है, ये एक नॉन अडेप्टिव चीज है ना. नेचुरल सिलेक्शन कभी भी एक नॉन अडेप्टिव चीज को फेवर नहीं करेगी, वो हमेशा एक फिटेस्ट ट्रेट को फेवर करेगी. तो अगर यहाँ पर कोई एक अनफिट फिनोटाइप फेवर हो रहा है, इसका मतलब यह है कि नेचुरल सिलेक्शन का हाथ नहीं है, जेनेटिक ड्रिफ्ट का हाथ है. ठीक है, ओके. लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी आर फ्री फॉर द डे. Hybridization has occurred between individuals of the two subspecies which now live in the area previously covered by the ice sheet. Comment on how the hybrid populations compare to the pure subspecies in terms of genetic variation and potential to adapt to climate change. हुआ क्या, हमारे पास दोनों सब स्पीसीज को, वुडलैंड वाली स्पीसीज को और दूसरा क्या था, बैरन लैंड वाली स्पीसीज को, इनको हमने आपस में क्रॉस करा दिया. ये हाइब्रिडाइजेशन है. हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, लेस क्या कहते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट वेरी क्लोजली रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स, जब उनको आपस में क्रॉस कराया जाता है तो उसको हम एक हाइब्रिड बुलाते हैं. So hybridization has occurred between individuals of the two subspecies which now live in the area previously covered by the ice sheet. अब वो ice sheet melt कर गई है. अब जब वो ice sheet melt कर गई है तो हमारे पास woodland और barren वाले जो species हैं अब वो करीब आ गए हैं. तो हमारे पास जब वो करीब आ गए हैं तो उन्होंने क्रॉसेस कर लिए हैं. अब जब उन्होंने नई हाइब्रिड बनाई, मतलब इन दोनों से मिलकर जो भी ऑफस्प्रिंग बना होगा, वो ऑफस्प्रिंग क्या होगा, वो हाइब्रिड होगा. उसको हम हाइब्रिड विगर भी बुलाते हैं. तो हमारे पास they're asking us comment on how the hybrid populations compare to the pure subspecies in terms of genetic variation and potential to adapt to climate change. हमारे पास सबसे पहले तो ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन होगी. जब भी हाइब्रिडाइजेशन होती है, जेनेटिक वेरिएशन होती है, हेट्रोजाइगोसिटी क्या कहते हैं, प्रमोट होती है. ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास ये तो हमें समझ आ गया, जेनेटिक वेरिएशन बढ़ रही होगी, मतलब हाइब्रिड पॉपुलेशन की जो जेनेटिक वेरिएशन है वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द प्योर सब स्पीसीज. फिर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जब होती है, हमारे पास हाइब्रिड विगर जब बनता है, तो मैंने बताई थी ये बात कि हमारे पास जो हाइब्रिड पॉपुलेशन होती है उनकी क्या कहते हैं, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा होता है, उनका जो अडेप्टेशन का चांस होता है वो ज्यादा होता है. ठीक है, तो हमारे पास क्या कहते हैं, हम ये सब लिख देंगे दैट हाइब्रिड्स है. हमारे पास क्या कहते हैं, हाइब्रिड्स व्हाई वुड दे बी मोर प्रोन टू डिजीजेस, अमर. हाइब्रिड पॉपुलेशन would have more genetic variation as the alleles from both subspecies shall combine. Therefore, a hybrid population would have a greater potential to adapt.
ठीक है, इसका लास्ट पार्ट इज रिलेटेड टू जीन टैग, तो वो हम नहीं करेंगे। एंड विद दैट दीज टू मोर पोटेंशियल टू अडेप्ट का मतलब ये है कि हमारे पास क्या कहते हैं, उनकी अडेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी। हमारे पास हाइब्रिड में हमेशा अडेप्टेबिलिटी के चांसेस ज्यादा होता है, बिकॉज हमारे पास दोनों पॉपुलेशंस की जो एडवांटेजेस एलीज हैं वो हमारे पास इन इंडिविजुअल्स में है, हाइब्रिड इंडिविजुअल्स में, जिनकी वजह से कंपेयर टू द प्योर ब्रीडिंग सबस्पीसीज दे वुड हैव अ ग्रेटर चांस एट सर्वाइवल, अ ग्रेटर चांस एट अडेप्टेबिलिटी। यस। जी। मुझे एक पॉइंट कंफ्यूज कर रहा है, ये हेट्रोजाइगोसिटी वाला। कि अगर हेट्रोजाइगोसिटी ज़्यादा होगी तो लाइक मतलब डिजीजेस से बच नहीं सकते उसकी वजह से। हाँ, तो डिजीजेस से बचेंगे ना। ओके। तो इसमें कंफ्यूजन क्या है, सही तो बोल रहा हूँ। दे मिस वुड बी व्हेन आई सेड दे विल बी मोर प्रोन टू डिजीजेस। दे वुड बी मोर प्रोन टू डिजीज का मतलब है कि उनको दे वुड बी मोर वल्नरेबल टू डिजीजेस, वो ज्यादा बीमार हो माय बैड सकते हैं। माय बैड। हाँ, प्रोन का मतलब होता है डिजीज होगी। डिजीज रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि हमारे पास डिजीज नहीं होगी। ठीक है, सो प्रोन टू डिजीजेस कौन होते हैं? जो हमारे पास होमोजाइगस होते हैं। होमोजाइगोसिटी जब क्या कहते हैं बढ़ती So है। they will be less, I mean, more resistant to disease. दे वुड बी मोर रेजिस्टेंट टू डिजीज। अगर मोर रेजिस्टेंट टू डिजीज है तो हमारे पास क्या कहते हैं, उनके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होंगे। सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा अडेप्ट करेंगे ना क्लाइमेट चेंज को। डिफरेंट क्या कहते हैं मुश्किल हालात में भी वो अडेप्ट कर सकते होंगे। ठीक है, सो योर कॉन्सेप्ट Yes, इज miss. स्टिल यूज द रॉन्ग टर्मिनोलॉजी, उसको बस सही कर लोगे, कॉन्सेप्ट सही है आपका। Okay, miss. ठीक है, क्लियर हो गया? एनीबडी हु हैज एनी क्वेश्चंस? Yeah, selection, evolution and biodiversity are relatively trickier chapters. उसकी वजह ये होती है कि they test you not just on biology, they test you on your critical thinking skills and your general knowledge skills. That is why one thing that I want you all to do is कि जितने भी habitats हैं उनके जो भी environmental conditions है बहुत in depth में ना पढ़ो, but just be familiar with how different habitats look like, how different environments are in different habitats, so that you are able to make these connections. ये कनेक्शंस बना अगर नहीं पाओगे तो ये क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाओगे। सो यू नीड टू सर्च द, यूजुअली वुडलैंड आ जाएगा, क्या कहते हैं डेजर्ट एरियाज आ जाएंगे या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आ जाएंगे। सो जस्ट मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल एंड फेमिलियर विद द एनवायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर ये एक्स्ट्रा रीडिंग कर लोगे, एक्स्ट्रा नॉलेज रख लोगे डिफरेंट हैबिटेट्स की, इट वुड जस्ट गिव यू एन अपर एज इन अंडरस्टैंडिंग बायोडाइवर्सिटी एंड सिलेक्शन एवोल्यूशन के क्वेश्चंस।